Okay, student, good morning. Okay, today my topic related to the sports and nutrition. This is a revision, weekly revision between the week. So today is a sports and nutrition. Let's start my topic. Balanced diet is very important for exam and unit test. What is a balanced diet? Sometimes question will come in an exam. Balanced diet, nutrition, and macronutrition, micronutrition, and component of the diet. Okay, so balanced diet, a diet which consists of all the essential food, protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, and water in correct proportions is called a balanced diet. This is the meaning and definition of the balanced diet. A balanced diet refers to the intake of animals which can provide all the essential food constitution necessary for growth and maintenance of body in defined amount in which they are required by the body. A balanced diet means eating the right amount of food from food from all food groups. These are meanings. आपको पता होगा कि अभी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, पहले नहीं आते थे। तो नाउ जो सेशन चलेगा उसमें 2 मार्क्स की भी होंगे, 1 मार्क्स की भी होंगे। एंड इन अदर वर्ड्स, balanced diet is that diet which consists of the various constituents of the food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual. These are other words. In fact, every individual does not require the same type of diet. The diet differ from individual in individuals. Some balanced diet point is number 1 is a balanced diet must contain all the essential constituents in the adequate amount. एडिक्वेट मतलब बराबर के अमाउंट जो है, ठीक है, उसको हम लेने एक इक्वल अमाउंट लेंगे हम लोग। जो हम बैलेंस डाइट का मतलब कि इसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, मिनरल्स भी हैं। दिस इज बैलेंस डाइट, ठीक है। दिस इज कंपाउंड ऑफ द फूड। नंबर 2 पॉइंट, द मस्ट बी डेफिनेट proportions between the different constituents of the food. And 3 point, the food should be easily digestible. जो फूड है वो डाइजेस्टिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा खाना खा लिया जैसे आजकल चल रहा है, जैसे कि पिज्जा हो गया है, बर्गर है, ब्रेड है, स्नैक्स में नमकीन वगैरह हो गई, बिस्किट है। दिस इज नॉट डाइजेस्टिबल। डाइजेस्ट नहीं होता है इस तरह का खाना जल्दी से। वो आपकी इंटेस्टाइन, स्टमक में कहीं ना कहीं चिपक जाता है, वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें डॉक्टर के पास कई बार जाना पड़ता है। दिस इज नॉट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज प्रोपोर्शनल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट फूड। ओके स्टूडेंट। नंबर 4, cooking of food is necessary because
Fertilizes food stuff and make it is a palatable and easily digestible. ठीक है, नंबर 4 पॉइंट ये हमारी है बैलेंस डाइट. दिस इज अ बैलेंस डाइट. ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? एक आम शब्दों में हम अगर समझेंगे उसे क्या चीज है. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड as the science of food and its relationship with health. In other words, it can be said that the nutrition is the science of food which compresses the dynamic process in which the consumed food is digested. Nutrition are absorbed and distributed to the tissues for utilizations and waste are deposit of the body. These are nutrition. अब nutrition भी there are the two types of the nutrition: macronutrients, micronutrients. Four part is macronutrients: carbohydrate, protein, fat and water. In a micronutrients, two types: minerals and vitamins. आपको लर्न करना है, ये दिमाग माइंड में बिठा लीजिए पिक्चर को, इस चार्ट को बिठा लीजिए माइंड में आपकी, किस तरह से आपको जो है इसको याद करना है. दिस टुडे इज अ रिवीजन पोर्शन रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. कुछ एक दो दिन में हम अपने जो है नए टॉपिक पे आएंगे. देयर आर द 3 लेफ्ट टॉपिक. टॉपिक जो लेफ्ट छूटे हुए हैं हमारे कौन से हैं? नंबर 10 फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. ओके, 3 चैप्टर आर लेफ्ट, बट टुडे दिस इज रिवीजन nutrition and balanced diet. Every individual in the world want to lead a healthy life. Food is the main basis for maintaining health. So the knowledge of food and nutrition is essential for every individual. Generally, food and nutrition are considered synonyms with one another when equally it is not so. In fact, food compresses all those substances that human beings consume for the survival. Food is a mixture of the various substances. Where are the essentials for life? Where nutrition is a dynamic process which compresses consumption of the food and remain healthy. In fact, nutrition is essential the process of the nourishing or being nourished, the process by which the living organism food and uses it is the growth and replacement of tissue is called nutrition. After that, the meaning of the nutrition. Nutrition is defined as the science of food and it is a relationship with the health. In other words, it can be said the nutrition is the science of the food which compresses the dynamic process in which the consumed food is digested. This is nutrition. Nutrition are absorbed and distributed to the tissues for utilization, so the waste are deposed for the body. This is nutrition and balanced diet. दोनों में डिफरेंस भी आपको बताना है. What is the difference? Sometimes the question comes in exam. What is the difference between the balanced diet and nutrition? It's very easy. इसको आप याद कर लें
डेफिनेशंस को, इसको आप पढ़ें और एग्जाम के लिए भी तैयार रखें कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिवीजन में मैं आपको दे रहा हूं। समटाइम क्वेश्चन आर come in exam the macronutrients. What is the macronutrients and micronutrients? मैक्रो से पता लग रहा है आपको, थोड़ा बड़ा हिस्सा, न्यूट्रिशियस का बड़ा हिस्सा, द बिग पार्ट ऑफ द फूड, द मैक्रो, एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड, दिस इज द माइक्रो। ओके, तो समझिए कौन सी चीज ज्यादा छोटी है, दिस इज द माइक्रो, और थोड़ा बड़ी है वो मैक्रो। अब वो न्यूट्रिशंस कौन से हैं मैक्रो में? वाटर है, फैट है, फैटर और प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा भाग है, न्यूट्रिएंट्स का एक बड़ा भाग है। कहने का मतलब है ये आपको जो है आपको दिख जाता है, ये दिखना मतलब आपको समझ आ जाता है कि ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको आई गिव द पर्स ऑफ द सोयाबीन, तो आपने देखे जाएंगे कि इसमें तो सर प्रोटीन ज्यादा है। आपका जो चिकन है, प्रोटीन, मोर प्रोटीन इन दिस पार्ट ऑफ द चिकन, एंड जो 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 चीजें हमें जो है एनिमल से मिलती हैं, ठीक, उसमें भी प्रोटीन होता है, और जो चीजें हमें जो है वेजिटेबल में मिलती हैं उसमें प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता लग जाएगा, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? चपाती, ब्रेड, बर्गर, देयर आर द मोर कार्बोहाइड्रेट। फैट आपको पता है, अमूल, बटर, घी एंड ऑयल। फैट में बनाना, मैंगो, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, पता भी जाता है आपको कि देयर आर द मोर मैक्रोन्यूट्रिएंट इन दिस पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। ठीक है। अब माइक्रो इज बहुत छोटा स्तर। कैसे? माइक्रो में जो है मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स में क्या चीज है? इन मिनरल्स कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। अब आप लोग कहेंगे कि सर फास्फोरस, तो देयर आर द मोर फास्फोरस क्वांटिटी इन द बनाना। बनाना में आपको ज्यादा फास्फोरस मिल जाएगा, ठीक। कोबाल्ट, आयरन, ओके, दिस इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, देयर, एंड विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो को समझते हैं हम लोग। मैक्रो इज द फोर्थ पार्ट। इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द वाटर। फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, 3 फैट, नंबर 4 वाटर्स। ओके बच्चों, कैमरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो बहुत हिल रहा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे एग्जाम में। सपोज कि क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप लोग जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट constitute the majority of individual's diet. It can be said that they are taken in the large amount. Are you understand? Large amount. They supply energy are needed for growth and maintenance of the body. They include carbohydrate, protein, fat and water. ओके, अब हम इसको समझते हैं नीचे। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? समटाइम क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम
What is a carbohydrate? Carbohydrate are the most important source of the energy. है या नहीं है? पीछे क्या नाम है तुम्हारा? आयुष. क्या चीज है ये? है ये कार्बोहाइड्रेट मोर एनर्जी का वो है. सपोज कि आप लोग जो है रनिंग करते हैं, कई बार आप जब दौड़ते हैं ग्राउंड में, तो आप लोगों को हम अचानक से जब थक जाते हैं, आपको एनर्जी देने के लिए बनाना, ओके, ये ग्लूकोज, देयर आर द मोर कार्बोहाइड्रेट, एप्पल, सम टाइप ऑफ द फ्रूट. ठीक है. अगर हम आपको दे दें कि इसका नाम कचौरी, देयर आर कचौरी एंड ब्रेड मक्खन, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो थोड़ा नुकसान पहुंचाता है. देयर आर द मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. पर फैट में नुकसान पहुंचाएगा आपको, गेम के दौरान डिहाइड्रेट कर देगा आपको. तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी. दे कंटेन द एलिमेंट्स of carbon and hydro and oxygen. ओके. कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है? कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. दे वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम कार्बो मीन्स दे आर कंटेन कार्बन. The second part of the hydro means they contain hydrogen. Are you understand? Hydrogen and carbon and means contain the hydrogen. The third part is the 8. 8 means that they contain oxygen. Are you understand? क्या बताया मैंने आपको? अब इसको थोड़ा सा नोट भी कर देते हैं. बहुत सारी चीजें क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी हैं आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे. इसमें आपको थोड़ा लिख के बता दिया जाए. कार्बन, कार्बो, कार्बो मीन्स कार्बन नंबर बी. हाइड्रो माने हाइड्रोजन. C. These are 8 means ये डेफिनेशन आपको लिखने की काम आएगी एग्जाम में. ओके. कार्बो फर्स्ट पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट. ओके. कार्बोहाइड्रेट डिफाइन, इसको छोड़कर आपको लिखा है इसको किस तरह से. नंबर 1 कार्बन, कार्बो, कार्बन. नंबर बी हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन. कार्बो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट. ओके. कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? एनर्जी देता है ये. ओके. कहां मिलता है ये कार्बोहाइड्रेट? आयुष टेल नाउ, कहां मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? कैसे प्राप्त होता है हम लोगों को? ओके, ठीक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड एनिमल. एनिमल से तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट. ओके. दालों में होता है सोयाबीन है, ओके, राजमा, चने, बनाना, व्हीट, मैदा,
They are the source of the carbohydrate. Next, in all carbohydrates, the ratio of the hydrogen atoms to oxygen atom is a 2:1. Just like water, H2O, carbohydrates are actually the organic compounds that are important for different digestive operations in our body. They are the loss of difference between carbohydrate and their other element in the important for nutrition, such as protein and fat. Generally, it is seen that a diet rich in carbohydrate needs less amount of water in comparison of the diet rich in the protein and fat. Okay, and there are the two types of the carbohydrate. Two types of the carbohydrate. Number one, simple carbohydrate and complex carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर द कॉल्ड simple carbohydrate. Sometimes it comes question in the exam. One mass क्या है वो कि give the type of simple carbohydrate. कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं. यू स्टैंड अप आयुष. कौन आयुष? यस यू आयुष स्टैंड अप. यस. कौन कौन से हैं बताओ, बुक में देख के बताओ. आज बुक कहाँ है तुम्हारी? चलो सीट डाउन. याद रखो, उसको समझो, क्वेश्चन यहीं से ही निकलेंगे. क्या है, मैं बताया था आपको कि पढ़कर ही समझना, एक्सपीरियंस लर्निंग. ओके, यही चीज है. आपको एक चीज बता रहे हैं यहां पर, धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों बता रहे हैं. क्योंकि एक बार पेपर जो बनेगा वो सिलेबस कम है, 70% सिलेबस है और 30% रिजल्ट हो रखा है. आपको वो भी बता दूंगा मैं. तो इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों को. ठीक है. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द carbohydrate, simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate, this is the glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose and lactose are the simple carbohydrate. And there are the carbohydrate are soluble in water. ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये वाटर में सोल्यूबल हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं उसके अंदर. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो नहीं मिलेंगे वाटर में. ठीक, वो अभी आगे पढ़ते हैं उसको. देयर कार्बोहाइड्रेट आर सोल्यूबल इन द वाटर. दीज आर क्रिस्टलाइन. ओके, दीज आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर द कॉल्ड सुगर, स्टार्च, डेक्स्ट्रिनेस, ग्लूकोज एंड cellulose are called complex carbohydrate. Polysaccharides ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं. यस, व्हाट इज योर नेम? इसलिए अभिषेक. स्टैंड अप एंड बताओ मुझको जरा कि मैंने आपको क्या बताया. अभी मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट, दे आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट? हाँ, देख के बताओ, कोई बात नहीं सर. ओके, हाँ, यस. एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऊपर ले लो, किताब को ऊपर ले लो. यस. हाँ, वेरी गुड. Yes, good.
Okay, this is a complex. Simple carbohydrate is the soluble in water. And sit down. And complex carbohydrate, these are not soluble in water, insoluble in water. Okay, simple complex carbohydrate is not insoluble in water. These are not sweet in taste. ठीक, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कैसे होते हैं? हाँ, जैसे आप मिठाई खाते हैं वो क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। समझ रहे बात को? मिठाई जो होती है और आपको जैसे मीठी चीज कोई मिल जाए, बिस्किट, चॉकलेट हाँ चॉकलेट एंड बर्गर, मीठा बन, ओके, ये सब चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट है। पर कौन से कार्बोहाइड्रेट है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जिसमें टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट लेस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से हैं वो? एक बताया था उन्होंने, स्टार्च है, ग्लूकोजन है, सेलुलोज है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली the difference between the chemical compositions. Simple carbohydrate have a smaller chain of chemical and compositions in comparison to the complex one. Are you understand? Once again, simple carbohydrate has smaller chain of the chemical. जो simple carbohydrate होते हैं, एक चेन होती है केमिकल्स की, उससे बंधे होते हैं। This is a simple chain of the chemical is a carbohydrate. Okay, simple carbohydrate. और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी चेन नहीं होती, वो टुकड़ों में होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो मीठे भी नहीं होते हैं। ओके, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इन योर माइंड एंड कॉपी। कई बार हम जो पढ़ाते हैं ये एग्जाम में ही रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द न्यूट्रिशंस, what do you understand by the balanced diet and macronutrient, micronutrient, give the definition and what is the type of the micronutrients and macronutrients. So macronutrients की type, yes, you stand up. There are the 4 types. Tell. Carbohydrates. Yes. Okay, very good. Sit down. Next, second point is the protein. Okay, protein क्या है इसको हम समझते हैं अभी। प्रोटीन कंटेन, प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें हैं? यस, पीछे से प्रोटीन, वेरी गुड, बहुत गुड। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सल्फर भी होता है किसमें? कंटेन इन द प्रोटीन। ओके, 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। प्रोटीन कंटेन्स इन 4 टाइप्स। कंटेन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द, कंटेन ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। एंड इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन सी चीज नहीं है? नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये नहीं है। ओके, अब प्रोटीन के बारे में बातचीत होगी। इसमें किस तरह का होता है प्रोटीन? प्रोटीन
are very large molecules. ओके, बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रोटीन। ये आप लोगों को पता होगा कि अगर प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो वो आपके स्टमक में ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, आपको लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक, आप पानी पीते रहो, मतलब आप अगर प्रोटीन खा लेंगे आप लोग तो पेट अपना स्टमक में ऐसे ही रखा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो बड़ा बड़ा दिस इज बिग लार्ज ऑफ द मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सो दे कैनॉट बी डायरेक्टेड absorbed into our blood. Okay, so they are turned into amino acid by our digestive system. There are the 23 amino acid. How many amino acid? There are 23 amino acid. Out of these, 9 amino acid must be available in the diet. There are the 23 amino acid, और हमारे डाइट में कितने एमिनो एसिड मिलते हैं? 9 amino acid in our food. These amino acid are used by the body to create blood, muscles, nails, skin, hair and tissue in internal organs. Internal organs like that, internal organs, kidney, liver, pancreas, these are internal organs. Heart, lungs, these are internal organs. Intestine, big intestine, large intestine, small intestine, okay. These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nails, skin, hair and tissues and internal organs. इनको जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है क्या? एमिनो एसिड। प्रोटीन form new tissues, repair the broken tissue, regulate balance of water and acids. वाटर, एसिड, इनको बैलेंस बनाकर रखता है एमिनो एसिड। और बॉडी की कोई भी पार्ट अगर ब्रोक हो जाते हैं तो उसको जोड़ने के काम आता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन इतना हेल्पफुल होता है ऑर्गन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी टिश्यू को जो ब्रोक हो जाते हैं उसको बांधने के लिए। प्रोटीन okay, this is the morning bell. Today my topic is complete. There are the balanced diet, nutrition, macronutrient in the carbon, protein, fat and water. Next day I will teach the fat and water and protein and micronutrient, minerals and new chapters. अभी मैं सिर्फ इसको ही बताऊंगा, माइक्रो और मैक्रो को। अभी लास्ट क्लास में भी मैंने यही बताया था जो आपको ऑनलाइन आपने देखी थी। सो okay student, today my topic is complete and related this question I will give you in the assignment. Assignment is a 60, I think 60 assignment दे चुका हूँ आप लोगों को। okay, best of luck and God bless. Thank you very much.